Excellencies, I warmly welcome the G20 finance ministers and central bank governors to India. Your meeting marks the first ministerial level dialogue under India's G20 presidency. Even as I convey my best wishes to you for a productive meeting, I am aware of the challenges you face. You represent the leadership of global finance and economy at a time when the world is facing serious economic difficulties. The COVID pandemic had delivered a once in a century blow to the global economy. Many countries, especially developing economies, are still coping with its after effects. We are also witnessing rising geopolitical tensions in different parts of the world. There are disruptions in global supply chains. Many societies are suffering due to rising prices, and food and energy security have become major concerns across the world. Even the financial viability of many countries is threatened by unsustainable debt levels. Trust in international financial institutions has eroded. This is partly because they have been slow to reform themselves. It is now up to you, the custodians of the leading economies and monetary systems of the world, to bring back stability, confidence, and growth to the global economy. It is not an easy task. However, I hope that you will draw inspiration from the vibrancy of the Indian economy. Indian consumers and producers are optimistic and confident about the future. We hope that you will be able to transmit the same positive spirit to the global economy. I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One earth, one family, one future. Excellencies, even as the world population has crossed 8 billion, progress on sustainable development goals seems to be slowing down. We need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. Excellencies, in the world of finance, technology is increasingly dominant. During the pandemic, digital payments enable
contactless and seamless transactions. However, some recent innovations in digital finance also pose risk of destabilization and misuse. I hope that you will explore how the power of technology can be used for good while developing standards to regulate its possible risks. India's own experience can be a model. Over the past few years, we have created a highly secure, highly trusted, and highly efficient public digital infrastructure. Our digital payments ecosystem has been developed as a free public good. This has radically transformed governance, financial inclusion, and ease of living in India. As you are meeting in Bangalore, the technology capital of India, you will have first-hand experience of how Indian consumers have embraced digital payments. In fact, during our G20 presidency, we have created a new system. This allows our G20 guests to use India's path-breaking digital payment platform, UPI. As you make use of it and experience its ease of use, you will understand why Indian consumers have adopted it so willingly. Examples like UPI can be templates for many other countries too. We would be happy to share our experience with the world. And the G20 can be a vehicle for this. Excellencies, I once again thank you all for your participation in this important meeting and wish you all the best for very productive and successful discussions. Thank you. नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मेघालय और नागालैंड में आज और चढ़ेगा चुनावी पारा। पीएम मोदी करेंगे दोनों ही राज्यों में रैली। शिलांग में होगा रोड शो। अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश के साथ ही बेंगलुरु में आज से शुरू हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं अध्यक्षता। और खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक जारी। बैठक के तीसरे दिन एक अहम सत्र में G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच संस्कृति पर होगी चर्चा। और सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों की।
नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दौर जारी है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन आज दोनों ही राज्यों में चुनावी पारा और चढ़ेगा जब पीएम मोदी दोनों राज्यों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले नागालैंड के दीमापुर में रैली करेंगे। इसके बाद मेघालय के शिलांग और तुरा में उनकी सभा होगी। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में शिलांग में एक रोड शो भी करेंगे। नागालैंड की 59 सीटों और मेघालय की 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा और 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। तो नागालैंड और मेघालय में चुनावी प्रचार जारी है। और अगर दूसरी राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मेघालय में कांग्रेस और टीएमसी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कल एक रैली में टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है, कोई भी असुविधा होगी तो टीएमसी उनके पास होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त नागालैंड के दीमापुर में मौजूद हैं, जहां की पीएम की जनसभा होने वाली है। लेकिन कुछ ही देर के बाद हमारे सहयोगी नीरज जुड़ेंगे। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री की ये सभा होने वाली है, नागालैंड में भी और मेघालय में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि 27 तारीख को दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2 मार्च को रिजल्ट्स आएंगे। फिलहाल हम वहाँ के अपडेट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर नहीं है, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा, और आज के एजेंडा में इस वक्त हम बात कर रहे हैं नागालैंड और मेघालय में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले 27 तारीख को, उसको लेकर। और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह नागालैंड के दीमापुर में इस वक्त मौजूद है, जहां की पीएम की बहुत ही महत्वपूर्ण सभा होने वाली है। नीरज, आपका स्वागत है आपका आज के एजेंडा में। और मेरा सवाल यही कि जिस तरह से आज सुबह आपसे बात हो रही थी कि नागालैंड में बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं कि वहाँ सारी जो पार्टियां वो एक साथ चुनावी मैदान में हैं, और ऐसे में आपने वहाँ के युवाओं से बातचीत की थी। विकास अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कुछ देखते हैं 27 तारीख को वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आम लोगों के वहाँ पे? देखिए, बिल्कुल आसिम, विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के चुनावों में, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी एनडीपीपी वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो नागालैंड का 5 साल में किस तरह का विकास किया जाएगा, उसका एक खाका जो विजन डॉक्यूमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया कि नागालैंड में किस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। अभी भी अगर हम आसिम देखें, पूर्वी नागालैंड में अभी भी विकास काफ़ी कम हुआ है। वहाँ पर नागालैंड के दूसरे हिस्सों के मुकाबले विकास की जो बयार है वो कम पहुँची है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट्स में पूर्वी नागालैंड पर फोकस किया है, और नागालैंड की संस्कृति को संरक्षित करने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और वो कहती है कि पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए एक समिति बनाई जाएगी और किस तरीके से पूर्वी नागालैंड का विकास किया जाएगा। दूसरी, अगर हम युवाओं की बात करें तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए विकास एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यहाँ पर बेहतर एजुकेशन के संस्थान होने चाहिए, मेडिकल की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा है उसको मिल सके, उसको लेकर भी जो युवा हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। युवाओं को अगर हम देखें कि ये एक ऐसी संख्या है और ऐसी भागीदारी है आसिम नागालैंड के चुनावों में कि ये हमेशा से बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग करते रहे हैं।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी लगी रहती हैं, क्योंकि ये वो युवा है जो किसी विचारधारा में अचानक से नहीं बनता है। उसको लगता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो उसकी तरफ चले जाते हैं, और जब वो उसकी तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका लाभ भी मिलता है। प्रधानमंत्री की आज जो रैली यहाँ पर हो रही है उसका जिक्र इसलिए भी करेंगे कि पूर्वोत्तर के विकास में प्रधानमंत्री का एक बड़ा योगदान रहा है। अगर आप देखें असम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काम किए, नागालैंड में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर विकास के काम किए जाते रहे हैं, केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं यहाँ धरातल पर उतरती रही हैं, प्रधानमंत्री का एक कह सकते हैं कि एक विशेष लगाव पूर्वोत्तर के हिस्से पर रहता है, पूर्वोत्तर भारत के हिस्से पर रहता है, और पूर्वोत्तर की जनता भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उनको पसंद भी करती है, खास तौर से जो यहाँ का यूथ है। तो आज की जो रैली है वो एक बूस्ट करेगी यहाँ की राजनीति को, और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीपीपी दो जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी का, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रैली होगी। अगर आप देखें, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने परंपरागत ड्रेस के साथ यहाँ पर बैठे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए असीम। और मैं आपको बता दूं कि मैं नागालैंड में काफ़ी समय से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, मुझे इतनी बड़ी संख्या किसी भी रैली में दिखाई नहीं दी, और इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर भी मुझे नागालैंड के लोग एक जगह नहीं दिखाई दिए। तो ये प्रधानमंत्री के प्रति प्यार है, उनके प्रति समर्पण है, और उनको सुनने की बेताबी है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और कुछ समय के बाद असीम प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, और बड़ी संख्या में नागालैंड के जो लोग दीमापुर में आए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको संबोधित करेंगे। बिल्कुल नीरज, और जैसा कि आपने दिखाया भी पैन करके कैमरा को, आपके पीछे बहुत से जो युवा है वो वहाँ बैठे हुए हैं, और कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले जो आपके पीछे से बैकग्राउंड में जो बैंड्स वहाँ हैं, युवाओं के बैंड्स, उनकी धुनें, उनकी म्यूजिक्स हमें सुनने को मिल पा रही थी। इसका क्या कुछ रोल होता है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स और युवाओं को अपनी तरफ खींच के लाना, बैंड्स का वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या कुछ रोल आप देखते हैं, खासकर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? बिल्कुल रोल है, देखिए बिल्कुल रोल है असीम, क्योंकि यहाँ की जो यूथ कम्युनिटी है वो इस तरह के बैंड्स आपको अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगे, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव कम्युनिटी है ये यहाँ की यूथ, और इन बैंड्स का निश्चित तौर पर एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संगीत एक ऐसा माध्यम है असीम कि जिससे हर कोई खिंचा चला आता है। तो यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, और सिर्फ नागालैंड के अंदर ही नहीं असीम, अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखें, बिहार के चुनावों को देखें, तो गीत संगीत का एक बड़ा रोल होता है। जो स्लोगन है, गीत के द्वारा अपनी बात रखने की जो परंपरा है वो एक लंबी परंपरा है, और उसी का नागालैंड में भी कह सकते हैं कि निर्वहन किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो आबादी है वो आकर्षित होती है इस तरह के गानों से, इस तरह के स्लोगन से, और यही कारण है कि यहाँ पर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इंग्लिश के गाने हैं, क्योंकि नागालैंड के लोग हैं इंग्लिश या नागा भाषा समझते हैं, तो नागा और इंग्लिश भाषा में ही इन गानों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को और ज़्यादा से ज़्यादा नागालैंड के युवाओं को आकर्षित किया। लेकिन नीरज, आपने यूपी का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया, उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ जब इस तरह के चुनाव प्रचार होते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के लिए गायकों को बुलाते हैं और उसमें गाने बजते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन नागालैंड में क्या पार्टी विशेष के लिए गाने बजाए जाते हैं या फिर एक कॉमन म्यूजिक बैंड्स होते हैं जो कि गाने प्ले करते हैं? देखिए हाँ, ये अंतर असीम जरूर देखने को है, मिलता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने पक्ष में गानों को कह सकते हैं कि क्रिएट करवाती है, लोगों के बीच में लेके जाती है। लेकिन यहाँ ये कॉमन गाने हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी की रैली में भी ये गाने मिल जाएंगे, एनडीपीपी की रैली में भी ये गाने मिल जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई रैली होती है तो वहां पर भी ये गाने मिल जाएंगे। तो गानों का एक खास कह सकते हैं कि रोल है युवाओं को आकर्षित करने के लिए, और ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी का इंतजार करते हैं तो बोर ना हो जाए, तो उस समय आपके लिए कुछ मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहे, तो उसकी दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि संगीत का रोल हर चुनाव में होता है, चाहे वो नागालैंड के हों या उत्तर भारत के किसी राज्य के। बिल्कुल नीरज, तो हालांकि संगीत म्यूजिक अपनी जगह है, लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो वाकई नागालैंड में काफी बढ़ गया है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद 27 फरवरी को वहां पे चुनाव होने वाले हैं और पीएम की आज बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पे प्रचार है और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को नागालैंड से हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे एक दूसरे सहयोगी विशाल बैरिस्टो इस वक्त
मेघालय में है और मेघालय की राजधानी शिलांग में इस वक्त वो मौजूद हैं। विशाल, आपका भी स्वागत है आज के एजेंडा में। और मेरा सवाल ये कि मेघालय को हम जानते हैं कि वहाँ पे भारत के जितने भी तमाम राज्य हैं, सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो मेघालय में होती है। क्या हम ये उम्मीद करें कि इस बार के चुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं वो ये उम्मीद किए बैठे होंगे कि इस बार वोटों की जो बारिश है वो भी उनके पार्टियों के लिए हो? बिल्कुल ठीक कहा असीम आपने, और अपनी गंभीर और धीर आवाज के अंदर आपने ये समझा भी दिया है कि मौसिनराम जो इलाका है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए मशहूर है। बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी तो उम्मीद कर ही रही हैं, और बीजेपी ने 60 सीटों पर अपने चुनाव में 60 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एनपीपी है जिनके साथ उनका अलायंस था, उसने सिर्फ 57 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो एनपीपी जो है वो ये जरूर कह रही है कि हमारी ही सरकार बनेगी, लेकिन इसके साथ ही टीडी न्यूज से खास बातचीत में कॉमरेड संगमा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करते हैं, और प्रधानमंत्री ने जो पूर्वोत्तर के लिए किया है वो किसी ने भी नहीं किया है, और उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे हैं पोस्ट पोल अलायंस के लिए भी। तो ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि किसी का एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना आए और पोस्ट पोल अलायंस करना पड़े, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और बीजेपी इस बार अकेली अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और आज का दिन बीजेपी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री तुरा में जो गारो हिल्स में है वहां पर भी जाएंगे, वहां रैली करेंगे, और शिलांग जो खासी और जयंतिया का सेंटर है और स्टेट का कैपिटल भी है, यहाँ पर वो एक रोड शो करने वाले हैं। और इसके साथ ही एक 3 रॉक बैंड्स उनके स्वागत में यहाँ पर स्टेज पर होंगे पुलिस बाजार के अंदर, और वो स्टेज भी प्रधानमंत्री उनके साथ साझा करेंगे। ये मैं जरूर बता दूं कि शिलांग के अंदर जगह की कमी है, ये एक हिल स्टेशन है, तो एक जो प्रॉपर रैली होती है उसकी जगह यहाँ पर नहीं है, फिर भी लोग काफी उत्साहित है उनसे मिलने के लिए। इसलिए बीजेपी ने ये किया है कि जगह जगह सड़कों पर जहाँ पर वो रोड शो करने वाले हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में वो यहाँ के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, वहां से लेकर पुलिस बाजार तक एलईडीज लगाए गए हैं, और इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कहीं पर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो और बच्चों के जो एग्जाम चल रहे हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, और ये पूरा कार्यक्रम इस तरह से चले कि लोग शिलांग में प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर सके, उनको देख भी सके, और हो सके तो उनको सुन भी सके, लेकिन उनकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल विशाल, लेकिन ये तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन अगर बाकी विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, बाकी पार्टियों की बात की जाए, उनकी तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं चुनाव को लेकर? असीम, देखिए, अगर हम बाकी पार्टियों की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने पिछले इलेक्शन में सरकार बना 5 साल सरकार चलाने के बाद भी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। 21 सीटें उन्होंने हासिल की थी, जबकि एनपीपी के खाते सिर्फ 19 सीटें लगी थी, और बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाए। हमने देखा कि किस तरह से एनपीपी, यूडीपी और बीजेपी के अलायंस ने सरकार बना ली। इस बार भी एनपीपी और यूडीपी अलग अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी अलग चुनाव लड़ रही है सभी 60 सीटों पर, और जो टीएमसी है उसकी नई एंट्री हुई है। और कमाल की बात यह है कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी टीएमसी बनी हुई है, क्योंकि जो 21 एमएलए थे उनमें से 5 की डेथ हो गई कांग्रेस के, और जो 17 बचे उनमें से 12 के साथ मुकुल संगमा जो कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एनमास मूव किया और नवंबर 2021 में उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। तो ये पूरा खाका मैंने आपके सामने खींचा किस तरह से यूडीपी, टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी और एनपीपी चुनाव मैदान में है। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस की सभाओं के अंदर ना तो जोश देखा जा रहा है, ना लोग उसमें जमा हो रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने आके कोशिश जरूर की थी कि पार्टी की जो छवि है उसको सुधारा जाए, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि क्यों लोग आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और बीजेपी ने आरोप लगाया है राहुल गांधी पर कि वो मुस्लिम अपीजमेंट के बाद आप क्रिश्चियन अपीजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेघालय में 75% जो वोटर है वो क्रिश्चियन है, और नागालैंड के अंदर तो ये 80% है। तो ये बड़ा एक आरोप है बीजेपी का कि राहुल गांधी के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इशू बन गया है यहाँ पर। इतना भी मैं आपको बता दूं कि
कल लखनऊ की जो बीजेपी यूनिट है वो मेघालय दिवस मनाने जा रही है, जिसमें मणिपुर और त्रिपुरा के वासियों को भी इनवाइट किया गया है। हालांकि मेघालय दिवस जो है वो जनवरी में आता है, लेकिन बीजेपी मेघालय दिवस मना रही है और ये वोटिंग से सिर्फ 2 दिन पहले होगा, माफ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को मेघालय सम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे भारत में जारी G20 बैठकों की। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चल रही G20 संस्कृति कार्यसमूह की पहली बैठक जारी है। आज तीसरे दिन एक अहम सत्र में G20 देशों के प्रतिनिधियों के बीच संस्कृति पर चर्चा होनी है। दरअसल इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 अहम विषयों पर चर्चाएं हो रही हैं। वो 4 विषय हैं: सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और उसकी बहाली, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना। संस्कृति कार्यसमूह की पहली बैठक के दूसरे दिन G20 देशों से आए प्रतिनिधियों को न सिर्फ खजुराहो के मंदिरों के दीदार करवाए गए, बल्कि हुनर हाट में भारत की पारंपरिक और सांस्कृतिक हस्तकला और हथकरघा से भी रूबरू करवाया गया। हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। आदित्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र रहा है और इस वक्त चल भी रहा है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे विषय हैं, 4 अहम विषय हैं जिस पर की चर्चाएं हो रही हैं। एक एक करके अगर संक्षेप में बता सकें, किन किन मायनों में, किन के लिहाज से ये सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, किस तरीके से जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनका संरक्षण किया जाए, किस तरीके से डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करके सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, और इसके अलावा किस तरीके से सांस्कृतिक धरोहरों के आसपास एक सांस्कृतिक इंडस्ट्री, जिसे हम कहें कल्चरल इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री, इकोनॉमिक माहौल जो है वो बनाने के प्रयास हो सकें। इन तमाम ये वो विषय थे जो इसमें शामिल किए गए हैं पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक में, जो खजुराहो में चल रही है। और आज चूंकि तीसरा दिन है और लगभग कंक्लूडिंग दिन है और 2-3 महत्वपूर्ण सत्र होने हैं और इन सत्रों में इन्हीं पर चर्चा होगी। असीम तमाम जो G20 देशों से डेलीगेट संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो समृद्ध विरासत है, उनकी जो समृद्ध संस्कृति है, जिस तरीके से भारत भी अपने आप को ये मानता है बड़ी रिच हमारी संस्कृति है और तमाम विरासतें हैं, उस तरह हर देश मानते हैं और वो सभी चाहते हैं कि उसको प्रमोशन मिले, उसको बढ़ावा मिले, उसको आगे अगर देखा जाए तो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिल सके। इसको लेकर एक प्लेटफॉर्म हो और G20 एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे को साथ लेकर आता है, जोड़ने का काम करता है और इस ओर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, इन 4 विषयों पर चर्चा हो रही है। ये जो बैठक आप हॉल देख रहे हैं, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है ये हॉल, ये पूरी ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां भी इससे बढ़ेंगी। इससे ये भी तय होगा कि किस तरीके से सभी देश संस्कृति के क्षेत्रों में जो नवाचार कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, वो एक दूसरे को साझा करने का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये साबित हो रहा है। और दूसरी बात असीम, यहाँ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि भारत संस्कृति को लेकर कितना गंभीर है, उसकी प्रदर्शनी भी एक यहाँ देखने को मिल रही है। भारत में जो भारत की पुरातत्व मूर्तियां रही हैं, उनको चोरी करने या लूटने का इतिहास बहुत पुराना है। 25 मूर्तियां ऐसी थी जिनको भारत सरकार ने हाल के दिनों में दूसरे देशों से भारत सरकार के प्रयासों से वो वापस आ पाई हैं, उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है और वो आकर्षण का केंद्र है उन तमाम डेलीगेट्स के लिए कि जिस तरीके से भारत अपनी उन विरासतों को बचाने के लिए गंभीर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को खजुराहो से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में बेंगलुरु में आज से 2 दिवसीय G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी के वीडियो संदेश के साथ ही इस बैठक की शुरुआत हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
25 फरवरी तक आयोजित इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, वित्तीय समावेश और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। Need to collectively work to strengthen multilateral development banks for meeting global challenges like climate change and high debt levels. Excellencies, in the world of finance, technology is increasingly dominant. During the pandemic, digital payments enable contactless and seamless transactions. However, some recent innovations in digital finance also pose risk of destabilization and misuse. I hope that you will explore how the power of technology can be used for good while developing standards to regulate its possible risks.